जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 18। यदा विनियतं चित्मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उसी काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। ज्यों-ज्यों शरीर की बाहरी क्रियाओं पर नियम और नियंत्रण की छाप बैठती जाती है, त्यों-त्यों आंतरिक आनंद की वृद्धि होती चलती है और इस प्रकार योगाभ्यास पतंजलि योग की क्रियाएं न करने की अवस्था में भी सद्गुरु कृपा से आप योग का साधन होता चलता है। जिस प्रकार उद्योग के निमित्त से परंतु वास्तव में ईश्वर कृपा एवं भाग्य के बल से सब प्रकार का वैभव आपसे आप घर में चला आता है, उसी प्रकार जो मनुष्य परिमित रूप से और संयम पूर्वक सब क्रियाओं का आचरण करता है, वह सहज में ही सद्गुरु कृपा से योगाभ्यास के मार्ग में लग जाता है और उसे आत्मसिद्धि के अनुभव की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन, जिस भाग्यशाली पुरुष से यह संयम वाला कर्म योग सध जाए, वह मोक्ष के सिंहासन पर सुशोभित हो जाता है। When the disciplined mind rests in the self alone, free from desire for objects, then is one said to be established in yoga. Wind creates storm in the sea. The wind of desire creates commotion in the mind. Desirelessness makes the mind constant and pure. Fixed in yoga is that mind which is impregnable against all desires. It rejoices exclusively in the self. Such a yuktaha is always conscious of his immortal, imperishable and invincible nature. Yuktaha means united with the self, or harmonized or balanced. Without union with the self, neither harmony nor balance nor samadhi is possible. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 6 श्लोक 18। अशा प्रकारे जेव्हा योगाच्या अभ्यासाने मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित केलेले मन ईश्वरामध्ये चांगल्या प्रकारे स्थापित होते, त्याच क्षणी तो सर्व इच्छांपासून मुक्त होतो, त्याला योगाचे आशीर्वाद मिळालेले आहे असे म्हटले जाते। शरीराच्या बाह्य क्रियाकलापावर नियम आणि नियंत्रणाची छाप स्थापित होत असताना आंतरिक आनंद वाढत राहतो आणि अशा प्रकारे योगाची क्रिया पतंजली योग न करण्याच्या स्थितीतही सद्गुरूंच्या कृपेने योगाचे साधन स्वतःला सहज उपलब्ध होऊ लागते। ज्याप्रमाणे प्रयत्नाने सर्व प्रकारची संपत्ती आपोआप घरात येते, परंतु प्रत्यक्षात ती ईश्वराच्या कृपेने आणि प्रारब्धाच्या शक्तीने येते, त्याचप्रमाणे मर्यादित पद्धतीने आणि संयमाने सर्व कर्म करणाऱ्या व्यक्ती सद्गुरूंच्या कृपेने सहजपणे योगाभ्यासाच्या मार्गावर येतो आणि आत्मसाक्षात्काराचा अनुभव घेतो। म्हणून हे अर्जुना, या शिस्तबद्ध कर्मयोगात प्रभुत्व मिळवणारा भाग्यवान व्यक्ती मोक्षाच्या सिंहासनावर विराजमान होतो। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 18. അങ്ങനെ യോഗാഭ്യാസത്താൽ വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട മനസ്സ് ഈശ്വരനിൽ നന്നായി സ്ഥിരത നേടുമ്പോൾ ആ നിമിഷം തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകുന്ന വ്യക്തി യോഗയാൽ
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിയമങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും മുദ്ര ശരീരത്തിൻ്റെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആന്തരികമായ സന്തോഷം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോലും സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ യോഗയുടെ മാർഗങ്ങൾ സ്വയം ലഭ്യമാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. എല്ലാത്തരം സമ്പത്തും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും ഈശ്വരകൃപയിലൂടെയും വിധിയുടെ ശക്തിയിലൂടെയും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് പോലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരിമിതമായും സംയമനത്തോടെയും സദ്ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് യോഗയുടെ പാത എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. അതിനാൽ അല്ലയോ അർജുന, ഈ അച്ചടക്കമുള്ള കർമ്മയോഗത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ മോക്ഷസിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 18. యదా వినీతం చిత్తమాత్మాన్యేవావతిష్ఠతే నిస్పృహ సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తథా. ఈ విధంగా యోగాభ్యాసించే పూర్తిగా వశం కాబడిన చిత్తము ఎప్పుడు పరమాత్మ యందే నిలిచి ఉంటుందో అప్పుడే సమస్త కోరికల నుండి విడిపడిన పురుషుడు యోగయుక్తుడే అని చెప్పబడతాడు. ఎంతగా శారీరక బాహ్యక్రియలపై నియమ నియంత్రణ ప్రభావం పడుతూ ఉంటుందో అంతగా అంతరిక ఆనందం వృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేయడుచే నిజానికి అవి భగవాను కృప మరియు సౌభాగ్య బలం వలన అన్ని విధములైన వైభవములు వాడంతటవే గృహాన్ని చేరుతూ ఉంటాయో, అదేవిధంగా ఏ మానవుడు పరిమితంగానూ మరియు సంయమనంతోనూ సమస్త క్రియలు ఆచరిస్తాడో అతడు సహజంగానే సద్గురు కృపతో యోగాభ్యాస మార్గంలో లగ్నమవుతాడు. అతనికి ఆత్మసిద్ధి అనుభవం ప్రాప్తిస్తుంది. అందుచేత ఓ అర్జున, ఏ అదృష్టవంతుడిని పురుషించే ఈ సంయమనం అనే కర్మయోగం సాధించబడునో అతడు మోక్ష సింహాసనంపై ఎంతో బావుగా శోభిస్తాడు. పరమాత్మ తుహి హై, तेरी इच्छा पूर्ण हो. जय सद्गुरुदेव, जय पशरणम. विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा. एहि प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में कैल गेल चित्त जाय काल में परमात्मा में नीक से स्थित भ जाइत अछि, ओहि काल में समस्त कामना से स्पृहा रहित भेल पुरुष योग युक्त कहल जाइत अछि. जेना जेना शरीर के बाहरी क्रिया सब पर नियम आ नियंत्रण के छाप पड़ैत चल जाइत अछि, तेना तेना आंतरिक आनंद के वृद्धि होइत चल जाइत अछि. एहि तरहे योगाभ्यास माने पतंजलि योग क प्रत्यक्ष क्रिया सब नहियो करैत रहला पर सद्गुरु कृपा से अपने आप योग साधना बनैत चल जाइत अछि. जेना उद्योग के निमित्त से मुदा वास्तव में ईश्वर कृपा आ भाग से सब प्रकार के वैभव अपने आप घर में आबि जाइत अछि, ओहि प्रकार जे मनुख परिमित रूप से आ संयम पूर्वक सब क्रिया के आचरण करैत अछि, ओ सहजे सद्गुरु कृपा से योगाभ्यास के मार्ग में लागि जाइत अछि आ ओकरा आत्म सिद्धि के अनुभव प्राप्त होइत अछि. एहि लेल हे अर्जुन, जाय भागशाली पुरुष से ई संयम युक्त कर्मयोग सधि जाइत अछि, ओ मोक्ष के सिंहासन पर शोभायमान भ जाइत अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.